The Hindu editorial vocabulary day is 30th April 2020, the last day of April. Hi guys, I'm Jyoti Singh and you are watching the Fluent Spoken English program with me. The first word of the day is limpid. Limpid, pronounced as limpid. Limpid means very clear, simple in style or in short very transparent. लिम्पिड का मतलब होता है जो कि बहुत क्लियर हो, बहुत सिंपल हो स्टाइल में और बहुत ही क्रिस्टल क्लियर ट्रांसपेरेंट हो. सिनोनिम्स आर पेल्यूसिड, ट्रांसलूसेंट, सेरीन. इन तीनों का मतलब यही होता है ट्रांसपेरेंट, क्लियर, सिंपल, अनट्रबल्ड, जो कि बहुत ट्रबलिंग ना हो. एंटोनिम्स आर ओपेक, क्लाउडी और ट्रबल, धुंधला, जो बहुत साफ ना हो, परेशानी. ठीक है. Examples are the limpid waters of the stream means the transparent, the clear, crystal clear waters of the stream. Pugilistic. 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 It is not pronounced as pugilistic but pugilistic. It means a boxer, especially a professional one. एक प्रोफेशनल बॉक्सर को pugilistic कहते हैं. Synonyms are fighter, who fights, gladiator, जो बहुत लड़ाइयाँ लड़ते हैं, या फिर prize fight. Prize fight means someone who is fighting in the ring for a kind of prize, for some prize. ठीक है, जो किसी प्राइज के लिए फाइट करते हैं उन्हें प्राइज फाइट कहते हैं. Antonyms are civilian, amicable या पीसफुल, जो ना लड़े, जो लड़ना जिनका पेशा ना हो, जो बहुत फ्रेंडली हो, पीसफुल रहना पसंद करते हो. Example are they are sometimes pugilistic, dominant and often greedy for power. यहाँ कुछ लोगों की बात हो रही है जिनके लिए हम कह रहे हैं कि वो बहुत ही pugilistic हैं, यानी कि फाइटर काइंड ऑफ नेचर है उनका, डोमिनेटिंग है और कभी कभी बहुत ग्रीडी भी हो जाते हैं. किस चीज़ के लिए ग्रीडी हो जाते हैं? पावर के लिए. दे आर समटाइम्स pugilistic, dominant and often greedy for power. Now there is a story behind this pugilist. The Romans in the 17th century, if I'm not wrong, it was 17th century only, they gave this word, they named this, actually gave the name to the boxers as pugilist. Pugilist, it is derived from a Latin word pugnis, which means fist. Now the boxers, they fight with their fist, right? So that is where this word has come up from. Pugnis means fist. Messianic. MESSIANIC, मेसियानिक. हमने कुछ पहले एक सेशन में हमने एक वर्ड पढ़ा था मिसिव्स, जिसका मतलब होता है पॉलिटिकल मैसेज, अ रिटन पॉलिटिकल मैसेज, राइट? नाउ हियर इट्स मेसियानिक. मेसियानिक मीन्स समथिंग विच इज मार्क्ड विद आइडियलिज्म और एग्रेसिव स्पिरिट ऑफ होप. कोई ऐसी चीज़, ऐसा इंसान, ऐसी थिंकिंग, ऐसा स्पिरिट जो किसी आइडियोलॉजी को फॉलो करता हो, अपने होप्स को लेके बहुत एग्रेसिव हो, राइट, जो सब कुछ जीत जाना चाहता हो, उसे कहते हैं मेसियानिक. सिनोनिम्स आर zealous, द फीलिंग ऑफ zeal, filled with zeal, passion, crusading और quixotic. Okay, QUIXOTIC, quixotic. These all means the same, to have a passion towards something, a zeal to achieve some goal or aim. Okay. Antonyms are pragmatic, practical or realistic. This is pragmatic, practical, realistic means having a calculated approach. बहुत कैलकुलेशन के साथ चलना, बहुत प्रैक्टिकल रहना. जबकि मेसियानिक मतलब कुछ बड़ा अचीव करना, कोई आइडियोलॉजी के साथ आगे बढ़ना. फॉर एग्जाम्पल, रीटा एंड हर टीम इज ऑन अ मेसियानिक मिशन ऑफ डिस्कवरिंग द वैक्सीन फॉर द डिजीज. कोरोना चल रहा है, every country, all the scientists, all the giant pharma companies, they're working towards discovering a vaccine for this corona, right? So you can connect that with this example. Rita and her whole team is on a messianic mission. एक zeal, एक passion के साथ चल रहे हैं ताकि वो एक वैक्सीन, इस डिजीज की वैक्सीन को डिस्कवर कर सके. नेक्स्ट इज anecdotal. ANECDOTAL, anecdotal. It means something which is based on personal accounts or observations, rather facts and research. कुछ observations के ऊपर चलना, ना कि research या facts के ऊपर, उसे हम कहते हैं anecdotal. Synonyms are unreliable,
इनफॉर्मल और अनसाइंटिफिक, जो कि जिस पे हम रिलाई ना कर सकें। नॉर्मल सी बात है, जब कोई फैक्ट्स एंड फिगर्स और रिसर्च पे बेस्ड नहीं होगा तो वो इतना रिलायबल सोर्स नहीं होता है, राइट। सो सिनोनिम्स कुड बी अनरिलायबल, इनफॉर्मल और अनसाइंटिफिक. Antonyms are scientific, experimented or objective. That means which is based on facts and figures. For example, the drug's efficacy still remains anecdotal. Thus, WHO and labs in various countries are now conducting larger clinical trials. क्योंकि ड्रग की एफिकेसी, उसका इफेक्टिवनेस अभी ऑब्जर्वेशन पे ही बेस्ड है, कोई फैक्ट्स एंड फिगर्स नहीं है, इसलिए WHO और कंट्रीज, बहुत सी कंट्रीज के बहुत सारे लैब्स अब जो क्लिनिकल ट्रायल कर रहे हैं वो एक लार्जर स्केल पे कर रहे हैं. तो दिस इज द एग्जाम्पल. द लास्ट वर्ड ऑफ द डे इज इंटरलॉक्यूटर. वेरी इंटरेस्टिंग वर्ड, इंटरलॉक्यूटर. INTERLOCUTOR, इंटरलॉक्यूटर. सी, यहाँ पे इंटरलॉक्यूटर वर्ड जो बना है वो दो छोटे वर्ड्स को क्लब करके बना है. इंटर का मतलब होता है बिटवीन, राइट. इंटरस्टेट, इंटरनेशनल मतलब दो नेशनल्स के बीच. तो इंटर का मतलब होता है बिटवीन. लॉक्यूटर का मतलब होता है टू स्पीक. ओके, लॉक्यूटर वर्ड हैज बीन ड्राइव्ड फ्रॉम अ लैटिन वर्ड LOCUI, लॉकी. ओके, विच मीन्स टू स्पीक, यानी कि दो लोगों के बीच की बात, राइट. वन हु टेक्स प्लेस इन अ कॉन्वर्सेशन और अ डायलॉग इज कॉल्ड अ इंटरलॉक्यूटर. सिनोनिम्स आर स्पीकर, पैनलिस्ट और डायलॉजिस्ट. जो कि पैनल में हो, जो बोल रहा हो, जो डायलॉग लिख रहा हो या डायलॉग में जो इन्वॉल्व हो, उसे हम कहते हैं इंटरलॉक्यूटर. एंटोनिम्स आर लिसनर, मोनोलॉग या फिर स्पीच. स्पीच एक देता है, बाकी सुनते हैं. मोनोलॉग में सिर्फ एक ही बोलता है, बाकी सुनते हैं. लिसनर तो सुनता ही है. तो ये एंटोनिम्स हो गए. फॉर एग्जाम्पल, दीज डेज इट्स वेरी कॉमन टू सी द मीडिया इंटरलॉक्यूटर्स प्रमोटिंग देमसेल्व्स एवरी नाउ एंड देन. आपने देखा होगा बहुत सारे न्यूज़ चैनल हैं जो हर एक न्यूज़ के बाद अपने बारे में बताते हैं कि उन्होंने कितने अवार्ड जीते, उन्होंने कितना कहाँ पे वो स्टैंड करते हैं न्यूज़ चैनल्स में. तो इट इज़ अबाउट प्रमोटिंग देमसेल्व्स, राइट, टेलिंग अबाउट देमसेल्व्स. सो ये चीज़ बहुत कॉमनली हमने देखी. तो एग्जाम्पल में भी यही है. दीज डेट इट्स वेरी कॉमन टू सी द मीडिया इंटरलॉक्यूटर्स. मीडिया इंटरलॉक्यूटर्स यानी दो या जो डायलॉग में इंगेज होते हैं, promoting themselves every now and then, right. So these were the 5 vocabularies for today. Stay tuned. If you like this video, then do subscribe, like, comment and share. Thank you.